So I've made it to Khajuraho. As you can see behind me, that is one of the main temples here at Khajuraho, and that's going to be my next stop. I have checked into a hotel called Casa de Williams. I found it on the internet, and when I rode into the town of Khajuraho, the first person that I asked, he ended up being the employee of Casa de Williams. So he guided me here, and it's a very small budget hotel, but very cozy, felt like home. I was very hungry after a 3 hours drive, and first thing I asked is how is the food here. He said that the food is really good, and true to his word, the food was fabulous. So I like you to meet the chef, whose name is Jagdish. Although you can see the name of the restaurant is Ristorante Bella Vista, but I didn't try the Italian, I tried the Indian fare. तो हम मिलते हैं जगदीश से. जगदीश जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने. जगदीश जी कासा दी विलियम्स के शेफ़ हैं. इन्होंने मुझे आलू पनीर पालक और दाल फ्राई खिलाया, जो बहुत ही अच्छा था. तो आपसे पूछते हैं, जगदीश जी आप यहीं के हो, खजुराहो के? खजुराहो का ही हूँ. अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं प्रेमनगर कॉलोनी में रहता हूँ. अच्छा, और ये वेस्टर्न मंदिर के पीछे ही है. वेस्टर्न मंदिर के पीछे, मतलब ये जो मंदिर हमने अभी देखा है उसके पीछे ही. अच्छा, और अभी आप खाना कितने टाइम से बना रहे हो? मैं खाना 3 साल से बना रहा हूँ. 3 साल से? अरे वाह. तो आपके खाने में स्वाद, मतलब हाथ में स्वाद काफ़ी 3 सालों में काफ़ी आ गया. मतलब आप बहुत बनाते जाओगे तो पता नहीं 5 सालों में तो बहुत अच्छा बना. मतलब हर जगह ट्राई किया, खजुराहो में भी बनाया हाँ. है, दिल्ली में भी गया हूँ. अच्छा. और ये विलियम्स में कितने? विलियम्स में फर्स्ट मेरा यहीं से मैंने काम सीखा. अच्छा. इसके बाद मैं मार्केट में घुस गया. अच्छा. मार्केट से फिर दिल्ली गया. हाँ. दिल्ली से फिर वापसी यहीं आ गया. अच्छा, तो मतलब घर छोड़ के घूम घुमा के फिर से घर आ गया. हाँ. सही. मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि आपने खाना सच में बहुत अच्छा बनाया था, और मैं जब बम्बई वापस जाऊँगा या कोई लोग वापस विलियम्स आना चाहेंगे तो मैं तो आपका ही नाम बताऊँगा कि खाना खाओ. तो थैंक यू वेरी मच. आप मेरे 2 दिन का यहाँ पर इंतज़ाम है, तो आप 2 दिन मुझे बढ़िया ऐसा ही खाना खिलाएंगे. आप सब बेफिक्र रहिए, आप खाली बोल देना कि ये चाहिए. बस मैंने अपने को आपके सवाल कर. Thank you. So that was Jagdish, and now I'm gonna head to the temples. I've got 2 days here, so I'm gonna cover the Khajuraho temple, which I just showed you. After which I plan to see the sound and light show, which is the sought after show in Khajuraho. Right now, I really don't have words to express what I have seen. These temples are fabulous. The architecture, the history, everything is good about it. It's somewhat I have found my nirvana over here. The weather is good, the scenery is good, and the architecture is superb. I mean, there's like I said, there's no word to describe Khajuraho. I really suggest everyone who's watching this, they must come and visit Khajuraho. I'm very happy that I took a guide for the tour, and my guide today was Mr. Pratik Jain, who's standing right behind me. We will go and ask him a little bit more detail, a little bit more history. Of course, one can go on the internet and find out what Khajuraho is all about, but it's always better to know from a guide. So let's just go to him and find out what the temple, what is its essence. Because the temples, the architecture, the figures here gives a lot of meaning to what life is, and that is what I'm looking at. So हमारे साथ आज प्रतीक जैन जी है. प्रतीक जैन जी, नमस्कार जी. आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन दी खजुराहो टेम्पल के बारे में, बट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि खजुराहो, मतलब इस टेम्पलों से जो कारीगरी है, जो ये उस ज़माने में चंदेला डायनेस्टी के ज़माने में क्या कहना चाहते थे? क्या ये जीवन का कुछ अर्थ हमें बताना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खजुराहो की जो टेम्पल हैं
उसमें आपका धर्म भी छुपा हुआ है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे टेम्पल आपको पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो आप ज़रूर आएँ खजुराहो मंदिर के लिए, जो एक टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के जो स्कल्पचर आर्ट है बहुत ही फेमस है। और आप गाइड जरूर लें। बिल्कुल नहीं, और अब ले तो भी प्रतीक जैन जी को ही लें। इन्फॉर्मेशन हाँ, आपको टेम्पल के बारे में दी जाएगी। तो मुझे आपसे एक आखिरी सवाल था प्रतीक जैन जी, जैसे आज के दिन मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है और मैं एक्चुअली घर से निकला ही हूँ इसके लिए कि कुछ सीखूँ ज़िंदगी में। और खजुराहो आके मुझे ऐसा इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि जीवन के छोटे मोटे नुस्खे जो है, छोटे मोटे चीज़ें जो हम उनको अपने आप मतलब उनकी एक रूल बना के हम जीवन जग सकते हैं। अब जैसे यहाँ के फिगर को देख के आप कह रहे थे कि तांत्रिक जो पीरियड था उस टाइम पे, कि तांत्रिक रिचुअल्स में काफ़ी बिलीव करते थे। जो चंडेला किंग्स थे वो भी तांत्रिक रिचुअल्स में काफ़ी बिलीव करते थे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे आपने कहा योग और भोग, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थ्रू एरोटिक, थ्रू सेक्सुअल एनर्जीज पीपल उस समय पे दे यूज्ड टू अटेंड दैट अल्टीमेट निर्वाणा। आपके हिसाब से क्या है ज़िंदगी? क्या यही था ज़िंदगी या कुछ और भी है इसके आगे? तो देखिए उस समय का बात होता है। उस समय जैसा कल्चर होता था तो उस कल्चर को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और ज़्यादातर आदमियों के जीवन का जो उद्देश्य होता था वो आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ही होता था। आज क्या है कि समय बदला हुआ है, मॉडर्न एज है, तो जीवन के उद्देश्य भी बदले हुए हैं। तो हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कि उस समय का जो कल्चर था वो अलग था, आज का जो परिवेश है वो अलग है। तो उस समय का आज के समय में हम कोई मतलब तुलना नहीं करना चाहते हैं। उस समय हम ये कहते हैं कि उस समय जो लाइफ थी, जीने की लाइफ स्टाइल थी, वो इन मंदिरों में दिखाई गई है। आज की जो लाइफ स्टाइल है वो टोटली अलग है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी आजकल की लाइफ स्टाइल कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। पर और अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर इस पीरियड में आना चाहूँगा। और वेल आपका बड़ा धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह मुझे इन्फॉर्मेशन दी। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो आर्टिस्ट थे उन्होंने पेशेंस को बरकरार रखा। तो हमें भी अपने जीवन में भी हैव टू मेंटेन अवर पेशेंस, क्योंकि पेशेंस अगर आप हैं तो कोई भी चीज़ आप पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो उसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि वी हैव टू मेंटेन अवर पेशेंस। बहुत बढ़िया कहा है आपने। तो मतलब ज़िंदगी में मनुष्य ने पेशेंस, क्षमता जो कहते हैं वो रखनी चाहिए, तो उससे जीवन का आधार पूरा हो जाएगा। और अगर पेशेंस हो तो इस तरह के मंदिर भी बनाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रतीक जैन जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रतीक जैन जी ने आपने कहा है और अच्छी तरह से बताया कि खजुराहो टेम्पल की हिस्ट्री। मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब पहले मैं सोच रहा था कि गाइड ना लूँ, बट मैंने लिया है और बहुत अच्छा डिसीजन रहा मेरा कि मैंने मिस्टर जैन को लिया है। तो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम खजुराहो फॉर द इवनिंग, and like I said, I'm feeling very happy that I visited this place. See you then. आज मेरा छठा दिन है और मैं खजुराहो में हूँ। काफ़ी ठंडी थी आज सुबह से, अब जाके कहीं धूप निकल आई है, पर दिन बहुत सुहाना है। आज मैंने सोचा कि मैं साइकिल लूँ और खजुराहो शहर घूमूँ, और इसी दौरान मेरी मुलाकात बड़े अच्छे इंसान से हुई है। बिलाल साहब उनका नाम है, जिनकी ये साइकिल की दुकान है। और चलिए हम उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, और जो मेरा जो सफ़र है, जो मुझे जानना है क्या ये चीज़ बिलाल साहब से जान सकता हूँ कि नहीं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने। बिलाल साहब आपको मिल के बहुत अच्छा लगा। तो आपकी ये दुकान कितने साल से है भैया? तो मैं दुकानदारी कर रहा हूँ लगभग 1982 से। अच्छा, ऑलमोस्ट मुझे 25 साल हो गए हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कहीं काफ़ी साइकिलें हैं आपके पास, तो आप रेंट पे चढ़ाते हो? जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको एक सस्ते में खजुराहो घुमाने का प्रयास करूँ और प्रोवाइड करूँ। तो मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ।
हर आदमी कार और व्हीकल से घूमना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सेव द नेचर्स, सेव द लाइफ, यू बेटर यूज द बाइक। बाइक। अच्छा। तो मेरा ये मैसेज है कि यूज मी, हाँ हाँ साइकिल यूज करिए हाँ। और सेव करिए, सारा कुछ जो भी कर सकते हैं आप। अगर आप साइकिलिंग करेंगे तो हेल्थ वाइज भी अच्छी रहेगी, नेचर को भी अच्छा रखेंगे। तो मेरा मैसेज है ये सस्ता और अच्छा। अच्छा। और जो बन पड़ता है लोगों के लिए कि दोनों की गाइडलाइन दे सकूँ, समझा सकूँ, कोशिश करता हूँ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के पहले मैंने करीबन आधे घंटे बिलाल साहब से मिलाए और इनकी बातें इतनी अच्छी है और इन्होंने एक्चुअली विदाउट वेरी हम्बल ये कह रहे कि इनकी बातें अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा सुनना था इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। तो एक ही सवाल करना चाहूँगा मैं इनसे, बिलाल साहब क्या लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं निकला हूँ कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, कि आगे ज़िंदगी या आप कहीं और कोई भी और ज़िंदगी कैसे जिए, आप क्या क्या कहना चाहोगे? देखिए, ज़िंदगी जीने का तो मतलब ये है कि जियो और जीने दो। और आप जिस चीज़ के लिए निकले हैं खुशी की तलाश में, और जो चाहते हैं आप वो आपको मिलेगी, बशर्ते आपको अपने आप को समय देना होगा, अपने आप को समझना होगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। आप दूसरी से उम्मीद रखोगे तो कभी कुछ नहीं देगा, न कोई खुशी न प्यार। क्योंकि दुनिया में लोग कितने प्रकार के हैं, वो खो गए हैं माया जाल में, तो भूल चुके कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आप यहाँ क्यों हैं, क्या आपकी नीड है। तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए, सारी नेगेटिव एनर्जी को छोड़िए और पॉजिटिव सोचना चालू करिए, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा और सारा कुछ अच्छा मिलेगा। खुशी कहीं और नहीं है, तुम में है, अंदर है तुम्हारे। ध्यान दीजिए अपने आप को, समझने की कोशिश कीजिए, आपको खुशी मिलेगी। बुरे लोगों से मिले तो भी अच्छी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, हर कोई बुरा नहीं है, बुरे के पास भी कुछ अच्छा है, उससे भी कुछ ले। सारा कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके जैसा नहीं है, लेकिन उसका कुछ तो है, तो जी रहा है। कोई आदमी यूजलेस नहीं है, सारे लोग यूज के हैं। जो आपको अच्छा लगे अपने विवेक से काम करें, उसको पालना सीखो। दुनिया में बड़ा आनंद है, तमाम प्रकार के लोग हैं, आपके अकॉर्डिंग कोई नहीं है, ना आप किसी के जैसे हैं ना आपके जैसा कोई है। कोई किसी को नहीं देता है, सोचना पड़ता है, सोचने का विषय है। तो ध्यान लगाइए, सोचिए, आपको आनंद मिलेगा। और लालच में मत करो, लालच तो सुकून नहीं है, वो तो अंत नहीं है उसका, वो तो बढ़ती जाएगी। क्योंकि मेरे अपने जिंदगी का तजुर्बा है, 32 साल का जो मेरा तजुर्बा है, मैंने 32 साल पूरे कर लिए। तो मैंने यहाँ बैठ के हज़ारों लोगों से बातचीत की और तमाम लोगों से बात करने के बाद ये निकला यार वाकई शांति का नाम ये है कि ना किसी को तकलीफ दो और ना किसी को तकलीफ दो। अगर अपन ये करना सीख जाएँ, सबसे पहले एटलीस्ट हम किसी को बुरा ना करें, हमारा बुरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम उसके पास करना बने, कोशिश करना चाहिए हमको। कोशिश हमारी जारी है। आप आए साइकिल लेने के लिए, हम चाहते साइकिल देते, आप चले जाते, फिर भागे या भाग चलो। मेरा मैं हमेशा उल्टा बोलता हूँ, ये अचानक किसी से बातचीत होती थी, ऐसे नहीं होती। सब सिस्टम में कहीं ना कहीं बना हुआ है, सबका समय होता है मिलने का, कोई ऐसे किसी नहीं मिलता है, सब फिक्स है। जैसे कि हम एनर्जी, हाँ हम आप मूवमेंट कर रहे हैं, सब फिक्स है, सब एक साथ सब होगा। और आइए पर जो जिसके साथ घटना घटती है वो होनी है, आप उससे बच नहीं सकते। कोशिश ये करें कि और ना हो, सीख लें, रोज़ सीख लें। मैं ये हक से कहना चाहूँगा और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं हमारे व्यूवर्स को भी ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई है बिलाल साहब से मिलने के लिए, और इनकी जो बातें हैं जो मैंने सीखी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़े और पल पास आया हूँ, जो मैं ढूंढना चाहता हूँ उसके करीब आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ढूंढ चुका हूँ पूरी तरह। तो बिलाल साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं, और मायूस ना हो ज़िंदगी से, यहाँ खत्म नहीं होती है, ये शुरुआत है। भाई हर रोज़ एक नया दिन होता है, होता कुछ नया नहीं, फिर भी नया कहा जाता है। वही शुरू होता है, वही लोग होते हैं, मगर रोज़ नया कुछ होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? वो होना है। हम नेचर में हैं, नेचर अपना प्रभाव दिखाता है। बिल्कुल। तो हमें आपको चाहिए कि हर चीज़ को एक डिस्टर्ब ना करें, हर चीज़ को एक ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। अननेसेसरी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। आदमी को लालच बुराई की ओर ले जाती है। जो चीज़ चमकती होती है ना, वो सुंदर नहीं होती है। हर चमकती हुई चीज़ खूबसूरत नहीं होती है। हम जो सोच लेते हैं वो सब सही नहीं होता है। अगर दूसरा भी कुछ सोच रहा है, उसको भी सोचने दो। कुछ तुम सोचो, कुछ मैं सोचूं,
और फिर निर्माण करें, सब तो कुछ विकास होगा। हम ही सब सोचें, हम ही सब करें, वो नहीं होगा। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि वैसे जीवन के काफ़ी अलग अलग नियम हैं जिससे ज़िंदगी सफल हो, पर मोर इम्पोर्टेंटली जो आपने स्ट्रेस किया है वो है लालच। वो अगर आप जितनी ही सीमित या जितनी ही कम कर सको तो आपकी ज़िंदगी सफल हो। कभी जब किसी के सहारा बनते हैं ना, हम किसी को सपोर्ट करते हैं, तो आपको उसी समय एहसास होना चाहिए कि यार कितना आनंद मिला है। तो एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, अच्छी चीज़ बुरी चीज़, उससे क्या सबक मिलता है, सीख मिलती है। और बुरे लोगों को कभी अवॉइड मत करो, गले लगाओ, क्योंकि लोग बुरे लोगों को अवॉइड करते हैं तो वो बुराई की ओर और बढ़ते हैं। और जैसे आपने कहा, अगर आप बुराई को पसंद ना करें तो फिर अच्छाई क्या है वो कैसे पता बगैर चलेगा? बुराई की अच्छाई का कोई वजूद नहीं है, बगैर हार की जीत का कोई मजा नहीं है। इसी प्रकार से बुरे लोगों को आप गले लगाइए, वो आपसे जब मिलेंगे तो आपके अंदर जो एनर्जी है उनके सुधारने में लगा दो, तो वो बुरा छोड़ देंगे। बुरे को कौन सुधारेगा फिर? जब बुराई उसमें आई कहाँ से? एक इंसान जब पैदा होता है तो बुरा नहीं होता, वो इंसान होता है। वो आखिर बुरा बना कैसे? अगर आप अच्छा समझ गए तो आपकी फर्ज बनता है, जो हमारा स्टाफ है जो मेरे साथ रहता है, मैं उनके रोज़ हर रोज़ एक एक्सरसाइज करता हूँ, उसकी बुराई की बात नहीं करता हूँ, मैं केवल ये कहता हूँ कि अच्छा ये है, उसका जिक्र ही मत करो, उसको जवाब मत, ऐसा ही मत कराओ। तो जो तुम कर सकते हो करो, और दुनिया में अपेक्षा मत रखिए, करो और भूलो। बहुत अच्छी बात है आपकी। फिर से धन्यवाद, आपका समय दिया मैंने। तो ये बिलाल साहब ने आपने देखे कि इनकी बातें कितनी अच्छी थी। और ध्यान ज़रूर रखिए कि आप अगर जब भी खजुराहो हो तो और आपको साइकिल रेंट पे चाहिए, अगर साइकिल रेंट पे नहीं भी चाहिए तो ज़रूर आके मिलिए बिलाल साहब से। In my quest to what life is, I am riding on a bicycle inside the bylanes of Khajuraho. This is the old village of Khajuraho, and it's very pretty. It is like any other village in India. The people are very quiet. The houses are small, and of course, they're all poor. In the quest of finding what life is, or what life can be, or perhaps how I can live the remaining part of my life, I've met quite a few interesting people so far. And the recent one, a very nice man called Bilal, who runs a rental bicycle shop, and through whom I have taken this bicycle on rent. My journey so far has been very interesting, although just about 20 minutes back I received a very sad news that one of my very good friends' wife passed away. A very young lady who had a young daughter. And I really don't have any expressions as such or any feelings as such, because in the quest of life I've learned many things, and among the many things that I've learned, something right now at the present is that life is cruel. It's really cruel to rob away a life partner from a friend, to steal away a mother away from a 6-year-old daughter. I don't know what to say. It's very unfortunate. I am not in Mumbai to be beside my friend, but I'll make sure as soon as I go to Mumbai, I will be with him.
I've seen most of the temples on the eastern side at Khajuraho. The western side temple, I saw it yesterday, and they are so beautiful that after lunch I intend to go back again there and just immerse myself to the beauty of those temples. It's been 2 days in Khajuraho so far, and I must say that it's a very beautiful, very quiet, very peaceful town, and I hope that it remains like this. The commercialization is very less, and I can't imagine if it becomes more popular than this and it becomes like any other commercialized city of India. I would perhaps want to in future live in a town like this, so quiet, so peaceful. I'll be honest, I may not be able to live all my life there, but occasionally I would like to visit such places, maybe have a house in such kind of small, peaceful town. I really like Khajuraho, and I can say I am falling in love with this town. It's been many years that I've always wanted to come here. After going to Ranthambore, Panj, Jim Corbett, I've heard a lot about this place, and I'm finally here. Not that I had planned it, it just happened that I choose Bandhavgarh. So in the quest of me searching what life is, I've been to 5 states so far, and I've been to cities, I've been to small towns, and now finally in the jungle. Maybe the jungle holds a few answers to my question, and once I leave from this place, I might get to know a life a little more better. So I'm gonna go inside for the safari, and as everybody says, good luck if you can see a tiger. I'm okay even if I don't see it, but I'm just gonna enjoy the safari. So I'll see you inside. There you are. There you are.
hold on. Yeah. आराम से भाई. बस बड़ी गाड़ी. I've just returned from the safari at Bandhavgarh, and the saying is true, as my friends and everybody said that the chances are very good to spot a tiger in Bandhavgarh, and it did came true. We saw a tigress, and I was very happy. And the moment I saw the tigress, something came into my mind that life can perhaps be lived as royally as how a tiger lives. Anyways, continuing with the purpose of me asking various people how and what they think life is. So let's just go and meet a couple of people that I was with in the safari. Let's just go and ask them what they feel about life. Hi guys. Thank you very much for your time. If you can introduce yourself and tell me in short, according to you, what life is. What is the essence? Like if you think that you have 30 years more or 40 years more to live, how would you want to live your life? You want to go first? Oh yeah. Well, hello. My name is Bart. I'm from Holland. I'm 30 years old. Currently I'm jobless. I choose to live more and work less. Well, the question about what's the meaning of life? I think I'll be clearly with that. It's just be yourself, and Yeah, so that's very nicely said. Be yourself and take one day at a time, I suppose. exactly, just live in the moment. It's like for today, you just go here and see some tigers, and you see a tiger and you're just enjoying it fully Yeah. as it is. You Live know? the moment. And the thing is that it's good to have wishes or dreams, but it's really difficult to not have expectations. And I think when you have expectations in life, then well, eventually you feel bad about it when it's not coming out. So, and I think with dreaming and wishing is just a thing to live for. Wow. And that's what I learned today. You know, I want to see some tigers, and it was a dream of me. And that came true. And that came true. So I'm really What a happy better about way it. to end your day. And it happens right now, so I'm still happy. Let's ask Marling what she feels about life in general and how you want to live your life. Oh, if I have 30 to 40 years more to live, for me, for sure, I feel like I want to do something. Like I was telling you, I studied like environmental, or now I'm thinking about becoming a doctor even. You know, I want to help people and give to others, and not only try to get for myself. Okay. There's only one thing I would like to get for myself, and that is this. You already got that, I suppose. Just a lot of experiences and a Okay. lot of things and see Okay. and like go through, you know, but life is too short to just stick in one place, in one house and do stuff and So see stuff. can I and- add something that now that I know you guys, you've been roaming India for the last 2 months, and one thing is that, like you said, you also searching for something, and like you said, you travel more, you get to learn more, and maybe that is what life is. It'll give you more experiences to live the rest of the life. Yes. But Guys, don't expect them, yeah. thank you so very much for your time, and You're I welcome. really wish you good luck and that you live 100 years more, not just 40. And nice meeting you. Nice meeting you. Thank you very much. Hi. My stay at Bandhavgarh has come to an end. I think it is the 12th day, and I'm really not keeping a track of days anymore because I'm enjoying this trip so much. I'm going back with a lot of good memories, a lot of good experience, and the jungle in itself taught me very good points, very good things that how I can live my life further.
and I'm pretty happy that I got to see the very royal animal, the tiger, which very few people get to see it. So overall, my experiences have been really good. Bandhavgarh was not on my map initially. I somehow felt that I should go to Bandhavgarh, but it was due for a very long time. What made my experience even more better was my stay here at Bandhav Villas. I would, in one word, to describe Bandhav Villas is superb. The overall experience at Bandhav Villas has been so good. The people, the staff, the owner, Mr. Manish Sharma, everybody was so nice. And I highly recommend Bandhav Villas to whoever who wants to visit Bandhavgarh. If not for Bandhav Villas, I don't think so my stay would have been that nice. The rooms, they were so nice that, in all honesty, I would say that I felt like I want to utilize every spot, every corner of the room to the maximum, which I couldn't do in a 3 days time. So many days is highly suggested. And what a stay. I mean, I really thank to all the people, to all the staff for the wonderful hospitality that they gave me. And they never even left a stone unturned to see to it that I was very comfortable. So I'm going back home. I'm leaving this huge, nice property, as you could see, very beautifully done, and my memories are even more fond now.